Hello friends, today we will start with the first chapter in English literature. In your book, First Flight, the first chapter, A Letter to God. A Letter to God. Now, this chapter, which is written by G.L. Fuentes, it's a wonderful chapter that would tell you the power of faith. Now it is said that faith can move the mountains. Now they say faith can move the mountains. I'm reading and I'm explaining every line of it, trying to explain you the important things as far as your board examinations are concerned, but not compromising the एस्थेटिक ऑफ द लिटरेचर. जो लिटरेचर की खूबसूरती है उसको ख़राब करे बगैर हम जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. फ्रेंड्स, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन you can see the pages that I am reading. Now, page number 1, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is a question this story delicately pursues. Now, this story poses a question that faith can move the mountains. But which type of faith? Which kind of faith? Now, faith जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आस्था. See, there is a difference in faith and belief. Belief is जिसको हम बोलते हैं विश्वास, और फेथ का मतलब होता है आस्था. फेथ का कोई ऑपोजिट नहीं होता है. इफ यू हैव फेथ दैट समथिंग वुड हैपन, बिलीव मी, इट वुड हैपन. बट इफ इट इज नॉट हैपनिंग एंड इफ यू आर सेइंग कि सी आई हैड फेथ इन दिस इवेंट बट दिस इवेंट डिडंट हैपन, देन आई वुड से देयर मस्ट बी सम लैक इन योर फेथ, अदरवाइज द थिंग्स वुड डेफिनेटली happen. Now, it's a story of a farmer. Now, Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Now, what is pesos? It's a currency. जैसे हमारे यहाँ पे रुपया है, वैसे ये जिस कंट्री में जिस कंट्री में ये फार्मर है वहाँ की करेंसी है pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him money? First, कि आप अगर गॉड को लेटर लिखते हो तो एड्रेस क्या लिखोगे, और फिर क्या गॉड ने वाकई उस गरीब किसान को पैसे भेजे हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. नाउ we won't go into the detail of the first chapter. On the first chapter there is an activity, how to fill the money order. Now, in modern day, money orders are becoming obsolete, so we won't go in the activity. We directly turn to page number. On page number 2, there is a format, as you can see on your screen. There is a format of money order, but we are not interested in how to fill money order because now these things are obsolete. We come to page number 3. Now, the house, the only one in the entire village, set on the crest of the low hill. Now, what is crest? Crest का मतलब होता है the peak, ऊंचा. जैसे वेव होती है ना, आप साइंस में पढ़ते हैं, crest and trough. तो crest जो होता है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, trough उसका नीचे वाला पार्ट होता है. So the crest of a low hill, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊंचाई पे ये एक छोटा घर है. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. A good harvest means good yield. Season में यहाँ पे हमेशा crop बहुत अच्छी होती है. The only thing that earth needed was a downpour. You know what is downpour? Downpour का मतलब होता है बारिश, or at least a shower. Now, downpour is heavy rain, shower, at least little rain. Throughout the morning, Lencho,
who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो इस कहानी में यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है. विलेज किस बैकग्राउंड में है? हिल, एक छोटी हिल के टॉप पे एक हाउस है और वहाँ पे खेत है. उन खेत में लेंचो एक फार्मर है जिसने अपनी फसल को बोया है. और जब कोई फार्मर फसल को बोता है, जब कोई किसान खेती करता है, तो उसको किसका इंतज़ार होता है? आपने देखा होगा हम इंडिया में मॉनसून जो होता है वो चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आता है. क्यों? क्योंकि मॉनसून सीज़न जो होता है वो खेतों में उसमें पानी आता है और जिससे फसल बढ़ती है, जिससे फसल राइप होती है. एंड ही इज लुकिंग एट हिज फील्ड्स इंटीमेटली. वो बहुत इमोशन के साथ अपनी फील्ड्स को देख रहा है. जैसे हम लोग अपने चीज़ों के साथ इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, हमारे घर के साथ इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, हमारे कॉलोनी के साथ हम इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, हमारे शहर के साथ जुड़ते हैं, हमारे कंट्री के साथ जुड़ते हैं. वो अपनी फील्ड्स के साथ उसी तरह से इंटीमेटली जुड़ा हुआ है. एंड ही इज लुकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ से बादल आएंगे और बारिश होगी, ऐसे वो इंतजार में बैठा हुआ है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. शायद अपनी वाइफ को वो बोल रहा है कि अब पानी बरसेगा. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर मतलब रात का खाना, रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, द ओल्डर बॉयज. अब ये ओल्डर बॉयज कौन है? ये उस किसान के लड़के हैं, सन. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them, all come for dinner. So आप इमेजिन करें कि एक पहाड़ है जहाँ पे खेत है. उस खेत में लेंचो खेती कर रहा है और उसकी मदद कौन करते हैं? उसके जो बड़े लड़के हैं वो, और जो छोटे लड़के हैं वो खेल रहे हैं. और वाइफ खाना बनाती है और जब खाना प्रिपेयर हो जाता है तो वो आवाज़ लगाती है, प्लीज़ कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज नाउ टर्न टू पेज नंबर 4. यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पेज नंबर 4. नाउ just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. Predicted का मतलब लेंचो ने एंटिसिपेट किया है कि बारिश होने वाली है और उस समय बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो जाती है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. और दूर से जब देखा तो वहाँ क्या दिखता है? काले घने बादल दूर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आते हुए दिखाई देते हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो जब बारिश आती है बहुत गर्मी के बाद, तो हमें मन करता है कि हम उस बारिश में थोड़ा सा भीग ले. लेंचो क्योंकि उसके खेतों को भी पानी मिलने वाला है, इतना खुश होता है, वो फील्ड में बाहर आता है and he just wanted to feel the rain on his body. And when he returned, he exclaimed means बहुत इमोशन के साथ वो क्या बोलता है? These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. Now they are new coins. Raindrop तो coin नहीं होती है, but metaphorically they are coins. Why they are coins? Because when the rain would fall, the fields would grow, the crops would grow, and the harvest would be good. And when he sell his harvest in the market, he would earn money. That money is coin. So he is saying that these are not the raindrops, they are the coins. They are new coins. The big drop are 10-cent pieces and the little one are 5s. And he is so simple farmer. He is comparing the big raindrop with that of 10-cent coin and the little one with 5.
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. Now, with a satisfied expression, he is very contented, he is very happy, and he regarded. What is regarded? He looked at the field of the ripe corn with its flower draped in a curtain, draped in a curtain, covered in a curtain of rain. पूरी फील्ड जो है वो बारिश से कवर हो गई, लेकिन but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. आपने देखा होगा कि कभी कभी जब बहुत तेज बारिश होती है, ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश नहीं होती है, और बारिश होने के वनस्पत क्या होता है, ओले गिरने लग जाते हैं। और ओले जब गिरते हैं तो हमें शहर में ओले बहुत अच्छे लगते हैं, हमको लगता है कि बच्चे खेलते हैं और ऐसा लगता है कि सब चीज़ें बिल्कुल वाइट चादर बिछ गई है, लेकिन किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा हैवॉक होता है, किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उनसे उनकी जो फसल होती है वो पूरी खराब हो जाती है। आप अखबार में पढ़ते हैं ना कि कल ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हो गई, ये हमारे राजस्थान में कॉमन होता है। तो वही लेंचो के साथ हुआ, वो उम्मीद, वो एक्सपेक्टेशन क्या कर रहा था कि बारिश होगी, पर बारिश नहीं हुई। बारिश की जगह वो जो बादल थे वो तूफान में तब्दील हो गए और हेल स्टॉर्म, ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. For the boys, they are the frozen pearls. छोटे छोटे मोती के जैसे, फ्रोजन, सफ़ेद मोती के जैसे। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए खेल है, लंचों के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल है। तो वो बच्चे उनको इकट्ठा करने लग गए। जैसे जब बारिश के ओले गिरते हैं तो छोटे बच्चे कैसे भाग के उनको इकट्ठा करना चाहते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। और ये जब बहुत ज़्यादा होने लगा, बहुत देर तक ओले गिरने लगे, तो उसने कहा कि अब ये खराब हो गया है। आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से चला जाएगा, अदरवाइज ये और ज़्यादा गिरेंगे तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटा तक वो जो सफ़ेद ओले हैं वो उसके फार्म पे, उसके घर पे गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और इस तरह के तस्वीर, इस तरह के फ़ोटोज़, इस तरह के पिक्चर्स आप रेगुलर देखते हैं, ख़ास तौर से जब गर्मी का मौसम होता है और जब बारिश का सीज़न नहीं होता है और ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है। वो बारिश की जगह मोटे मोटे ओले गिरने लग जाते हैं, और ये वही टाइम होता है जब किसान अपनी फसल को, उसकी फसल पूरी हो जाती है, सिर्फ एक छोटी सी बारिश की ज़रूरत होती है और वो फसल को फिर बाद में काटता है। लेकिन ओले गिरने से वो फसल पूरी नहीं हुई, वो क्रॉप पूरी नहीं हुई, पूरी ना होने से पहले वो खराब हो गई। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, क्योंकि वो इतने भारी होते हैं, लीफ भी टूट गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी क्रॉप थी कॉर्न की वो टोटली डिस्ट्रॉयड। It was completely destroyed. The flowers were gone from the plants. The corn flowers, they were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. बच्चे तो खेल रहे हैं, लेकिन लेंचो बहुत सैड है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locust would have left more than this." Now the plague of locust, locust होता है ना, जिसको हम बोलते हैं लोकस्ट, जो ग्रास हॉपर टाइप होता है, जो फील्ड्स पर अटैक करते हैं। ख़ासतौर से राजस्थान में इस तरह के अटैक बहुत होते हैं, लोकस्ट। दैट इंसेक्ट भी अगर अटैक करता है और सारी फील्ड को ख़राब कर देता है, उसके बाद भी कुछ बचता है। लेकिन यहाँ पे इस हेल स्टॉर्म ने, इसने राइटर ने कंपेयर किया है
कि ये जो हेल स्टॉर्म है ये उस लोकस्ट के अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि लोकस्ट का अटैक जो होता है वो फिर भी कुछ छोड़ देता है, बचा के रख देता है फील्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर we will have no corn. Now I am reading page number 5. Now this year we will have no corn. और जो किसान होता है उसकी सैडनेस का कारण क्या होता है? ऐसा नहीं होता है कि उसको हर महीना क्रॉप उगाता है और हर महीना उसको पैसा मिलता है। वो साल में एक बार क्रॉप उगाता है, पूरा उसका देख रेख करता है, फिर उसको काटता है और जो उससे पैसा मिलता है उससे पूरे साल उसका खर्चा चलता है। अब अगर वो क्रॉप खत्म हो गई तो पूरा एक साल उसके पास पैसा नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, पूरी रात दुख में बीती। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा वर्क खत्म हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमारे आज ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, पूरा साल हम भूखे रहेंगे। नाउ देयर इज ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, that you read the question and try to answer it, but and when we will discuss the question and answers we will take all the question and answer, but right now we will continue with the chapter. So we continue with the next paragraph on page number 5. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. लेकिन उस वैली में जो परिवार रहता है, सॉलिटरी हाउस, एक अकेला घर, सॉलिटरी मीन्स अलोन, वन, इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो उम्मीद जो है वो किसकी है? हेल्प फ्रॉम गॉड। अब कोई डिवाइन इंटरवेंशन ही लेंचो की हेल्प कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. They say. ग्रेट लोग बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। गॉड ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इंतजामात करके रखे हुए हैं। All through the night, Lencho thought only of his one hope. और पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण है जिसके बारे में वो सोच रहा है, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। और जैसा हम जानते हैं कि ईश्वर भगवान सबको देखता है, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और जो मन के अंदर भी हमारे हैं वो भी गॉड पढ़ लेता है। तो शायद लेंचो के दुख को भी गॉड ने पढ़ लिया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। जैसे ऑक्स होता है ना, बहुत मेहनत करता है, तो लेंचो भी फील्ड्स में बहुत मेहनत करता है, अपने काम के लिए बहुत ईमानदार है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको पता है कि लिखते कैसे हैं। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो वो उसका फेथ इतना स्ट्रांग होता है और वो इतना स्ट्रांग इस चीज़ को मानता है कि भगवान ईश्वर सब देखता है, ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया है। ईश्वर ने अगर किसी इंसान को धरती पे पैदा किया है तो पैदा करने से पहले उसको खाने का और उसको रहने का सारा इंतजामात भी किया है ईश्वर ने, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, लेकिन सबके लिए किया है। ऐसा लेंचो का बहुत स्ट्रांग फेथ है। अब आप ये देखिए कि इसका ये जो स्ट्रांग फेथ है वो कैसे काम करता है। सो व्हाट ही थॉट टू राइट अ लेटर टू गॉड एंड पर्सनली वुड गो इन द टाउन एंड mail it. God, he wrote, if you don't help me, my family, I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... वो अपनी पूरी कहानी लिखता है कि मुझे वापस से क्रॉप को उगाने के लिए और पूरे साल अपने घर का खर्चा चलाने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत है।
ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और जो लेटर लिखते हैं उसको एनवलप में डालते हैं, तो ही रोट टू गॉड, बिकॉज गॉड का कोई एड्रेस तो नहीं है, और उसने उस एनवलप पे लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. और वहां पे पोस्ट ऑफिस गया, उस पर उसने स्टैंप लगाया, टिकट लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. नाउ अब क्या होगा, जब वो मेल बॉक्स खुलेगा तो उसमें जब लिखा हुआ होगा द गॉड, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, who was the postman and also helped at the post office, went to his boss laughing and showed him the letter to God. बहुत तेज हंसता है, क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हुआ है पोस्ट ऑफिस में कि कोई एक लेटर गॉड के नाम से आया है. Never in his career as a postman had he known that address. और एज अ पोस्टमैन अपने करियर में उसने कभी भी इस तरह का लेटर, ऐसा एनवलप नहीं देखा. द पोस्टमास्टर जो हेड पर्सन है पोस्ट ऑफिस का, अ फैट एमिएबल, यू नो व्हाट इज एमिएबल? एमिएबल फ्रेंच वर्ड आमी, AMI से बना है, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली. सो अ फैट एमिएबल फेलो, थोड़ा मोटा है, और हैप्पी फेलो, फ्रेंडली फेलो. नाउ टर्न टू पेज नंबर 6. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. वो पोस्टमैन के साथ पोस्टमास्टर भी हंसने लग जाता है, क्योंकि शायद पोस्टमास्टर की लाइफ में भी ऐसा पहला लेटर है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." उसको बड़ा आश्चर्य होता है, एक तो उस आदमी के सीधेपन का, इनोसेंस का, और दूसरा उसके स्ट्रॉन्ग फेथ का, कि आदमी कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है इसका कि गॉड मेरी मदद जरूर करेगा. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब चूंकि पोस्टमास्टर अच्छा इंसान था और वो नहीं चाहता था कि ये इतना जो इनोसेंट चाइल्ड लाइक पर्सन है लेंचो, इसका फेथ खराब हो, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. He answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. और जब उसने खोल के देखा तो उसमें लेंचो ने केवल मदद ऐसे नहीं कि आशीर्वाद चाहिए, उसने कहा मुझे पैसा भी चाहिए, इंक एंड पेपर. तो पोस्टमास्टर को समझ में आया कि सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा. बट इज स्टेप टू हिज रेजोल्यूशन मीन्स उसने जो निश्चय कर लिया था कि मैं इसकी मदद करूंगा, ही वॉज रेजोल्यूट. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. तो उसने अपने एम्प्लॉयज से कहा कि हम सब पैसा इकट्ठा करते हैं. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. ऐसा होता है ना कि जब बहुत बड़ी कोई कैटास्ट्रॉफी आती है, अभी जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है, तो गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज पूरे साल नहीं लेंगे, और वो उन लोगों को जाएगा जिनके पास पैसा नहीं है. सो द चैरिटी जिसके लिए दूसरा वर्ड फिलेंथ्रोपी भी होता है, जो लोग को दान करते हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 pesos, और उसके लिए अकेले के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो 100 pesos इकट्ठा करे. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. अब सबने मिलके भी किया तो 100 नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, 50 pesos से थोड़ा ऊपर हुआ, 50 pesos से ऊपर हुआ. सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. मोर देन हाफ का मतलब 100 का हाफ 50, 50 से थोड़ा ज़्यादा. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. और उसने उस लेटर में वो पैसे डाल दिए और केवल लेटर में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ साइन किया, नीचे लिखा गॉड. नाउ द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. और नेक्स्ट संडे को जब लेंचो आया तो उसने पूछा कि क्या मेरा कोई लेटर आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन
who has performed a good deed looked on from his office. और जब पोस्टमैन ने उसको लेटर हैंड ओवर किया, सो दे वर एक्सपेक्टिंग दैट सीइंग एन आंसर फ्रॉम द गॉड, लेंचो वुड बी वेरी हैप्पी. पोस्टमास्टर ऐसा क्यों सोच रहा था? पोस्टमास्टर ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि वो ये मान के चलता था कि शायद लेंचो को भी ये उम्मीद नहीं होगी. लेकिन लेंचो का जो फेथ है वो तो बहुत स्ट्रांग है. उसके मन में ये ख्याल ही नहीं है कि मेरी गॉड मदद नहीं करेंगे. लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. तो जब मनी देखा तो उसको आश्चर्य नहीं हुआ. जिसका स्ट्रांग फेथ होता है उसको आश्चर्य नहीं होता है. आश्चर्य किसको होता है? आश्चर्य हमें तभी तो होता है जब हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते और वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है. आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप टॉप करेंगे और आप टॉप कर जाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा. लेकिन आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग जानते हैं कि आप टॉप ही हैं, तो जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है. तो ऐसा ही फेथ लेंचो का भी था. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने पैसा काउंट किया तो उसको बहुत गुस्सा आया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. इंसान भूल कर सकता है, भगवान नहीं कर सकता. गॉड से गलती नहीं होती है. क्या गलती? जितना पैसा मांगा था उतना पैसा नहीं है. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. क्योंकि गॉड के पास तो बहुत सारा है, ऐसा लेंचो का मानना है. और गॉड जितना मांगोगे उतना देगा. कहते हैं ना, ईश्वर जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. गुस्से में वो पोस्ट ऑफिस जाता है, पेन और पेपर लेता है. On the public writing table, he started to write. और एक लेटर और लिखता है. With much wrinkling of his brow. Wrinkling, यहाँ पे सलवटें आ जाती है क्योंकि उसको लगता है उसके साथ कोई धोखा हुआ है. Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. Affixed का मतलब चिपका देना. On the envelope with a blow of his fist. ऐसे चिपका देता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और लेंचो लेटर डाल के चला जाता है. पोस्टमास्टर को बड़ा आश्चर्य होता है कि लेंचो को ना तो आश्चर्य हुआ ना उसने कोई ग्रेटिट्यूड फील किया. ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके एक्सप्रेशन तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी थे. तो वो जाता है, लेटर को ओपन करता है. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. मैंने तुमसे जितना पैसा मांगा था तुमने मुझे उतना दिया, लेकिन मेरे पास कितना आया? 70. इसका मतलब 30 pesos. 30 pesos इज स्टोलन. किसी ने चुरा लिया है. सेंड मी द रेस्ट. मुझे जो बाकी का पैसा है वो भी भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच. क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन मुझे मेल से मत भेजना. जैसे अभी तुमने 70 pesos भेजे हैं उस तरह से मुझे मत भेजना. क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो चोर हैं. तुमने 100 pesos भेजे, उन्होंने 30 pesos चुरा लिए और मुझे सिर्फ 70 pesos मिले. लेंचो. So it's a beautiful story that tells you the faith, how faith can let the things happen and ends in a wonderful humor. Now in the next class we will do all the question and answers of this chapter. Thank you.